Good morning, all of you. I hope so. You all are ready for the lecture. The attendance seems very low. Is there any issue of internet in Badlapur? Electricity is there. I hope so. Otherwise, today I'm teaching very important part. Otherwise, there will be a problem. Please don't wish good morning, good day, good night. No messages, only relevant messages. Please, no good morning. I understand when we are together, you are already wishing me good morning. So let us start with today with the new concept, ex-interest price and cum interest price. Before that, let me revise what we have done on that day. क्या किया था हमने last lecture में because a day's gap. चलो. What we studied on that day, we are dealing with which type of investment. There are how many types of investment? There are two types of investment on the basis of period of holding. The first investment, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, so you all are audible. I मतलब कोई mute नहीं है. I have to see that कौन mute नहीं है. Please mute yourself ना. Everyone, please mute yourself. Okay, ma'am. जिनके बैकग्राउंड में आवाज नहीं होना, दे कैन कीप देमसेल्फ अनम्यूट. जिनका प्राइवेट रूम है, अपने रूम में बैठे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यू कैन टेक द प्रिविलेज ऑफ keeping yourself unmute. Okay, so that day we started with two types of investment. Basically, we are going to deal with the first investment that we are going to deal. There are two types of investment on the basis of holding. The first investment is long-term investment. Long-term investment means those investments which you are होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एक बार परचेज किया, फिर ना तो उसको परचेज और उसको सेल नहीं करते. इट रिमेन्स फॉर यू विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड अदर वन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स उसी साल में परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, वापस परचेज कर रहे हो. देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन इट. फिर हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ interest, there are two types of, on the basis of returns, there are two types of investment. One is fixed interest bearing and other one is variable interest bearing. Fixed interest bearing means where the fixed interest means interest fixed है, interest rate is fixed and the due date for receiving interest is fixed and interest will receive on that due date. That is one part of the problem. And the second part of the problem is basically where the interest rate is variable. Interest rate is variable. That is, the rate of interest does not remains fixed. Okay. सो ये दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने देखे. आपके प्रॉब्लम्स भी ये दो टाइप पे बेस है. एक जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है, जो हमने अभी स्टार्ट किया है. सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज वेयर देयर इज वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी विच इज ओनली इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है. इसके लिए द ओनली वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी इज आई थिंक इक्विटी शेयर्स. फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में स्टडी किया. वी स्टडीड एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इंटरेस्ट. कौन रिकलेक्ट कर सकता है क्या? कैन एनीवन म्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इंटरेस्ट के बारे में. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? Face value. Face value. Yes, so first thing that we studied, that interest is calculated on face value. Second thing that we studied was what is the formula for calculating interest. Interest calculate करने का formula क्या है? Face value into rate of interest into number of month divided by 12. कोमल आ गए आप on track? हाँ कोमल. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो अभी कोई आंसर नहीं दे सकेगा. कोमल अपने आप को म्यूट करो. चलो, नहीं तो सारे इंटरेस्ट आप ही आंसर आप ही दोगे. चलो ठीक है.
Yes, everyone should get a chance. Better you'll raise a hand and I'll ask someone to do that. Okay, I'll ask someone to answer it. That will be better. फिर हम लोगों ने देखा how do we calculate number of months. Number of months कैसे calculate करते हैं? कोई बताएगा number of months कैसे calculate करते हैं? From the last date of interest received to the date of transaction. Last date जो भी है interest receive का to the date of transaction is your interest या नंबर ऑफ मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल अगर 30 जून को इंटरेस्ट मिला था और 1 सितंबर को अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 30 जून से 1 सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. आई विल हैव टू म्यूट एवरीवन. So I've muted all except me. जिसको भी आंसर देना they can give. आज अटेंडेंस बहुत कम है भाई. सो आप लोगों को समझना चाहिए कि अभी आप लोगों को कोई स्कोप नहीं है और कहीं से पढ़ने का. चलो जाने दो. सो इंटरेस्ट के लिए नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन आई एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज यही गुरु मंत्र है इस चैप्टर का. नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल्स टू लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड to the date of transaction. To date of transaction. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि लास्ट इंटरेस्ट रिसीव डेट था. चलो आई विल चेंज द लास्ट to the date of transaction. Now I'm giving you an example के last interest received was 31st March. I'm changing the example 31st March and date of transaction is let us take 30th June. So how many months? What will be number of months? जिनको आंसर देना है please raise your hands. Shruti has already raised hand. और कोई? 2 participants. चलो बोलो कौन कौन है? पूजा भट्टाचार्य और बस 3 ही लोग. So surprise. कोमल यादव स्वधा. चलो स्वधा आई एम अनम्यूटिंग यू. बहुत प्रॉब्लम है अनम्यूट करने का. स्वधा आप अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे हो. आई थिंक यू हैव. चलो आफरीन यू आंसर. आफरीन 3 months, ma'am. 3 months. चलो स्वधा आप Yes, भी. ma'am. हाउ मेनी मंथ्स? 3 months, ma'am. 3 months. चलो ओके. So I think answer is clear. So this is how we calculate number of months. I think यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अभी let us move forward. अब हम लोग जाते हैं नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन के बाद. मैंने आप लोगों को बोला था हर ट्रांजैक्शन पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. एवरी ट्रांजैक्शन इन एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. तो ये जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, अब आप लोगों को नया कुछ समझना है. दैट इज व्हाट इज दिस एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड व्हाट इज कम इंटरेस्ट प्राइस. मार्केट में जब भी देखो यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग दिस सिक्योरिटी फ्रॉम अ मार्केट. फ्रॉम अ मार्केट मीन्स क्या? शेयर मार्केट डेफिनेटली. स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वहां से आप ये शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स परचेज और सेल कर रहे हो. या परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट. तो जब आप मार्केट से कोई
कोई भी डिबेंचर्स, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल नाउ परमानेंटली ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर्स कभी मार्केट से परचेस या सेल करते हो तो कोटेड प्राइस मींस मार्केट में जो प्राइस दिया रहता है वो कोटेड प्राइस मींस मार्केट प्राइस. ओके, मार्केट प्राइस or share market price, like you can say, is either x interest or cum interest. Now what is this x interest? इतना तो आप लोग समझ गए हो कि x interest means without interest and cum interest means with interest. इतना तो क्लियर है ना कि x interest means होता है without interest and cum interest मतलब होता है with interest. ये interest क्यों आ रहा है बीच में? Why this price has interest in it? What is the reason that it has interest? ये interest का फंडा क्यों आ रहा है? What is this फंडा of interest? तो अब ये आपको समझना है. अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ. मिस्टर ए has debentures of 10% debentures of face value 50,000 on 1st June 2020. ठीक है, ये जो डिबेंचर्स है जिस भी कंपनी का है उसका इंटरेस्ट डेट है, इंटरेस्ट डेट इज 30th June एंड 31st December. ठीक है, ये मिस्टर ए है जिसके पास है 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 50,000 ऑन 1st June. मतलब इसके पास ये पहले से ही है, मैंने खाली डेट लिया 1st June 2020. अभी ये मिस्टर एक्स ही वॉन्ट्स ए वॉन्ट्स टू सेल दिस डिबेंचर. ए को क्या करना है? ये डिबेंचर्स को सेल करना है. किसको सेल करना है? मिस्टर एक्स को. मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग. बहुत ध्यान से समझो, घड़ी घड़ी एक्सप्लेन नहीं होगा बिकॉज हियर वी आर नॉट ऑन द बोर्ड. ठीक है, मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग दिस डिबेंचर्स. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Mr. A quoted price of 55,000 x interest. मतलब x interest means this amount does not includes interest. अब ये interest का क्वेश्चन क्या आता है? Why this interest comes into picture? अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज या सेल का कब हो रहा है? 1st June 2020 को. इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? When you are going to get interest on this security? What is the date of interest? Interest is going to receive. इंटरेस्ट डेट क्या है? इंटरेस्ट डेट इज 30th June. मतलब ये इंटरेस्ट 30th June को मिलेगा. किसको मिलेगा? Who will receive this interest? किसको मिलने वाला है ये इंटरेस्ट? Can any guesses? Yes, anyone who would like to guess? ये इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, इंटरेस्ट डेट इज 30th June. Who will receive this interest? Who will receive this interest? And for how many months? These are two questions that comes in my mind कि इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है और कितने मंथ के लिए मिलने वाला है. You have a chat box. You can answer on the chat box. I'll check. Chat box पे आंसर दो. So Miss Swadha says Mr. X. Om says Mr. A. 6 month का इंटरेस्ट मिलने वाला है मिस्टर ए. बहुत सारे लोगों ने मिस्टर, मैं भी, मेरे में हैंड्स अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है. रिंटू, टेक योर डाउनलोडेड वर्जन, इट शुड कम. रेज हैंड आता है. सो लेट
अभी सबसे पहले इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलने वाला है? 6 मंथ का. साक्षी सेज x को मिलेगा और 6 मंथ्स का मिलेगा. सुदाशिल भट्टाचार्य जी सेज दैट 6 मंथ्स का मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? ही हैज नॉट आंसर्ड. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किसको मिलेगा. सबसे पहले जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून को. 30 जून को डिबेंचर्स किसके पास है? हु इज होल्डिंग द डिबेंचर ऑन 30 जून? ओनर कौन है डिबेंचर्स का? ओनर ऑफ डिबेंचर्स कौन है? ओनर ऑफ डिबेंचर ऑन 30 जून इज X, नॉट A. क्यों X? A ने तो 1 जून को ही बेच दिया X को. A ने क्या किया? 1 जून को ही बेच दिया. अगर 1 जून को उसने अगर डिबेंचर्स बेच दिया है तो 30 जून को वो किसके पास है? 30 जून को वो X के पास है. तो X is going to definitely receive the interest. And for how many months? For 6 months. क्योंकि कंपनी 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट दे रही है. अगर 30 जून को दे रही है और 31 दिसंबर को दे रही है, मतलब जनवरी से जून तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स. फ्रॉम जनवरी टू जून इज 6 मंथ्स. कैलकुलेट करके देख लो. जनवरी, फरवरी. जनवरी कैसे लिया मैंने? 31 दिसंबर के बाद जनवरी होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स होता है. तो X is going to receive X is going to receive interest for 6 months. X का होल्डिंग कितने मंथ्स का है? X ने कितने मंथ्स के लिए वो डिबेंचर्स अपने पास रखे थे? For how many months did X hold that debentures? X के पास कितने मंथ्स के लिए था? Let us, मैं न्यू स्क्रीन पे आई हूँ तो आई नीड टू A के पास डिबेंचर्स थे फॉर 50,000. A holds 10% debentures of 50,000. Face value 50,000. मैम हाँ, ये बोलो. मैम स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है. ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा होगा ना? हाँ हाँ, मैं लिख रही हूँ ना. क्वेश्चन नहीं दिख रहा. बराबर है. मैं क्योंकि मैंने स्क्रीन चेंज किया है ना. प्रीवियस स्क्रीन पे आपको दिखेगा. ये देखो. प्लीज म्यूट ऑल. अपने आप को अनम्यूट मत करो. अनलेस एंड अनटिल आई से इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. अभी बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि मिस्टर एक्स ने कभी परचेज किया? व्हेन डिड मिस्टर एक्स परचेज? 30 जून को नहीं. मिस्टर एक्स ने कब परचेज किया? फर्स्ट जून फर्स्ट जून. राइट. 1 जून को अगर मिस्टर एक्स परचेज कर रहा है ए से, तो उसके पास सिर्फ 1 महीने के लिए डिबेंचर्स है. उसके पास डिबेंचर्स कितने मंथ के लिए? सिर्फ ओनली फॉर 1 मंथ. लेकिन उसको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलेगा? 6 मंथ्स का. कंपनी देखो बहुत सिंपल है. यहाँ पे एक चीज समझना है कि नाउ मिस्टर ए ने डिबेंचर्स होल्ड डिबेंचर्स फॉर 5 मंथ्स. पहले 5 महीने किसके पास थे? ए के पास. फिर मिस्टर एक्स ने परचेज किया और मिस्टर एक्स के पास डिबेंचर्स कितने मंथ के लिए हैं? डिबेंचर्स फॉर 1 मंथ. तो टोटल हो गया 6 मंथ. हुआ या नहीं हुआ? मिस्टर ए के पास 5 मंथ्स कैसे आया? जनवरी टू
1st June एंड मिस्टर एक्स ने जब परचेज किया तो वो जून के मंथ के लिए उसके पास था. सो यहाँ पे अगर जनवरी टू 1st June काउंट करेंगे तो इट विल कम 5 months. दैट इज जनवरी, February, March, January, February, March, April and May. ठीक है, तो 5 months. और जून का 1 month किसके पास है? एक्स के पास. लेकिन जिस दिन कंपनी ने सोचा कि कंपनी वांट्स टू पे इंटरेस्ट, कंपनी जब 30th June को इंटरेस्ट पे कर रही है, when company is paying interest on 30th June, on 30th June, on that day, Mr. X is the owner and he gets the interest and gets interest of 6 months. ये जो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को मिल रहा है वो एक्चुअली गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इसमें से 5 महीना किसको मिलना चाहिए? ए को, और 1 महीना किसको मिलना चाहिए? एक्स को. तो क्या होता है ना, जब कोटेड प्राइस डिसाइड किया जाता है या मार्केट प्राइस जब डिसाइड किया जाता है या परचेज या सेल प्राइस डिसाइड किया जाता है, उस टाइम पे प्राइस बोला जाता है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राइस कोटेड वाज 55,000 एक्स इंटरेस्ट. इसका मतलब कि एक्स विल पे ए 55,000 for debentures plus he will also pay 5 month interest. वो क्या करेगा? 5 months का इंटरेस्ट भी पे करेगा. ही विल ऑल्सो पे 5 months इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि वो विदाउट इंटरेस्ट अपना पूरा बेनिफिट किसी और को दे दे. देखो, इंटरेस्ट इज, जब हम डिबेंचर्स खरीदते हैं तो इंटरेस्ट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट वी गेट. इंटरेस्ट ही तो मेन पोर्शन है ना जिसके लिए. अब इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू face value, that is 50,000, into rate of interest is 10%, into 5 months. 5 months का इंटरेस्ट किसको देना है? 5 months का इंटरेस्ट ए को देना है. 5 डिवाइड बाय 12, एक्स इज गोइंग टू पे. आंसर कितना आता है? इतना इंटरेस्ट का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है. 5,000 आता है. 5,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, समथिंग इन पॉइंट. कैलकुलेट करो कितना होता है. What will be the amount of interest? Rintu has raised. Don't raise hand, please put the message chat पे आया आंसर. 208. ये अलग अलग क्या होता है? सिद्धेश 416 नहीं आएगा. 2083 2083 लेते हैं हम लोग. ठीक है, विल टेक 2083. दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, पॉइंट नहीं लेना है, पॉइंट इग्नोर कर देना. इतना इंटरेस्ट मींस एक्स इंटरेस्ट प्राइस अगर है, if it is x interest price, then x is going to pay to a. क्या पे करने वाला है? ए को रुपीज 55,000 which is the base price plus interest which is 2083. X interest price में total amount to be paid by Mr. A would be 57,083. समझ में आया? आई होप सो ये क्लियर है. एक्स इंटरेस्ट प्राइस में
इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होके एडिशनली पे होता है। अब कम इंटरेस्ट प्राइस में क्या होगा? लेट अस टेक द सिमिलर एग्जांपल। अब कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस quoted to X is 57,000, 57,500. So what now? What will be? अभी कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस मीन्स दिस इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या इंक्लूडेड है? इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है? सेम क्वेश्चन इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2083. It includes amount of interest which is 2083. Is that clear? So now what will be X interest price? X interest price कितना होगा? Can anyone answer? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो। X interest price कितना होगा? What will be X interest price? Come interest price means total price is 57,500 and it includes amount of interest of 2083. Someone has answered. So let's see. 55,417. Om has said. Sudashil Bhattacharya. Anyone else want like to answer? Please answer on the chat box. Anjali. Yes, I'm waiting for your answer. Everyone. Afroz says 55,417. Shruti says 6. Siddesh says yes, and others also. Please try and answer. Please try and answer. Bharat says yes, I'm waiting till you'll answer. अब मुझे अभी मेरे को ये जानना है कि ये 55,417 आया कैसे? I want to know कि ये 55,417 आया कैसे? Very good. Happy that आप लोग सब आंसर दे रहे हो. Very good. कैसे आया वो बताओ. चलो, I would mute someone to answer. Nikhil, I'm muting you to unmute you. I'm unmuting you. Nikhil, I want you to answer. कहाँ है भाई निखिल? आप निखिल आपको अनम्यूट कर रही हूँ. चलो बोलो. ये आप लोग करते क्या हो क्या? अनम्यूट ही नहीं हो पाते हो. चलो, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? रिंटू. चलो रिंटू, मैं आपको पूछती हूँ. हाँ हेलो. रिंटू बोलो. हाँ हाँ यस. एक्चुअली मैम वो प्राइस कोटेड था 55,000 एंड इंटरेस्ट वाज 2083. सो उसके बेसिस पे अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो उसको माइनस करेंगे 2083 से, तो कोटेड प्राइस को पकड़ मतलब के. इन सिंपल आई कैन से कि कम इंटरेस्ट प्राइस में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, हाँ, माइनस इंटरेस्ट, तो आई विल गेट द हाँ 55,417. समझा. हाँ माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मींस 57,500 में से माइनस किया 2083, तो आई गॉट द आंसर. दैट इज व्हाट यू ऑल हैव कोटेड. कितना आंसर था? 55,714. कितना था? कितना डाला था आप लोगों ने चैट बॉक्स में? द सेम अमाउंट. ओके, सो आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर. अब आगे जाते हैं. नाउ एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस इज क्लियर है. X interest price means which is not including interest and cum interest price means which includes premium. Interest का जो part है, X interest means without interest and cum interest means
विथ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपके लिए कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है, व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू कंसिडर फॉर योर प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर एक्स इंटरेस्ट प्राइस is your cost price. X interest price is to be considered in the problem. हमको कौन सा प्राइस चाहिए, always we need to understand that कि हमको हमेशा कौन सा प्राइस चाहिए, हमको हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही चाहिए। वी डोंट वांट कम इंटरेस्ट प्राइस। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट से कैसे, कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट पे कैसे जाएंगे, कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट पे अगर मुझे जाना है तो कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। समझ में आया। तो आपके प्रॉब्लम में अगर आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट करोगे तो यू विल गेट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है। कम इंटरेस्ट प्राइस मींस जो प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है उसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं, और एक्स इंटरेस्ट मींस कोटेड प्राइस में अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। आपको प्रॉब्लम में क्लियरली दिया होगा एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारे लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है तो हमको क्या करना है, हमको कम इंटरेस्ट प्राइस से एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो वी विल गेट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो आज का ये फर्स्ट पॉइंट, ये इतना पार्ट आपको लिखना है। आप लोग लिख रहे हो क्या? चलो राइट डाउन। एक्स इंटरेस्ट मीन्स, एक्स इंटरेस्ट प्राइस मीन्स, लिखो चलो। प्राइस मीन्स price without interest, and come interest price means price with interest. Okay, done. And x interest price is equal to कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट। आपके प्रॉब्लम में आपको कौन सा प्राइस कंसिडर करना है, यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Now we are moving to the next part, that is transactions that will appear in your investment accounting. अभी investment accounting में तीन basic transactions होते हैं। First transaction is of purchase. पहला transaction कौन सा होता है, purchase of investment. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है, क्या एंट्री होगी, एनीवन कोई बताएगा? कैन यू रेज योर हैंड? इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? सारिका ने बोला है। सारिका आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ सारिका बोलो। मैम परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ओके। इसके साथ में इंटरेस्ट की एंट्री भी आएगी। जब आप परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट तो आप इंटरेस्ट भी पे करते हो साथ में। आपने देखा ना, मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो दिया ही दिया, प्लस 5 महीने का इंटरेस्ट भी दिया, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू पे इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ओके। जब भी इन्वेस्टमेंट परचेज होता है, तो इन्वेस्टमेंट जब परचेज होता है तो इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट भी पे होता है। जैसे वही हम लोग एग्जांपल लेते हैं,
55,000 was X interest price. Interest was 2083 and total amount paid was 57,083. ठीक है, ये एंट्री होती है. अब जब भी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हो तो व्हाट आर योर स्टेप्स. अगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको दो स्टेप करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद है. आई नीड नॉट रिपीट इट. डू यू वांट मी टू रिपीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? कोई बताएगा? एनीवन? चलो मैं अंजलि से ही पूछ लेती हूँ. अंजलि बोलो. अंजलि, हाँ अंजलि, मैम आप अनम्यूट ही नहीं हो रहे हो. हाँ बोलो. मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप म्यूट होते जा रहे हो. जान दो. पूजा से पूछ. हाँ बोलो मैम अंजलि. हाँ बोलो बोलो face अंजलि. value into rate of interest into number of months upon 12. वेरी गुड. क्लियर है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. चलो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे एंड स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. बी पॉइंट में विल कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस. एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है. व्हेन विल यू कैलकुलेट एक्स इंटरेस्ट प्राइस? कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस कब होगा? व्हेन एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन or when cum interest price is given. बोलो कौन बताएगा? अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस वापस, या व्हेन कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तब कैलकुलेट करना पड़ेगा? चलो भट्टाचार्य जी बोलो. हाँ राज. जब हाँ बोलो. मैम जब कम इंटरेस्ट प्राइस दिया रहेगा तब एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट जो रहेगा. एक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट. करेक्ट? यस मैम. इज इट करेक्ट फॉर एवरीवन? सब लोगों को समझ में आ रहा है? एनीवन, एनी डाउट? सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ. जस्ट पुट ऑन योर चैट बॉक्स यस, यहाँ तक क्लियर है हमको, मैं आगे पढ़ा सकती हूँ. सब लोगों को रिप्लाई करना है. जब तक सब लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी. ये मेरे ना वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही मुझे दिखाई देते हैं आंसर देते हुए, जो दूसरे इतने सारे ज्वाइन किए हुए हैं. व्हाई डोंट यू ऑल आंसर? एंड व्हाई देयर आर 60 स्टूडेंट्स ओनली टुडे? आई डोंट नो. बदलापुर में लाइट है ना? चलो गुड. यस हाँ है. ठीक है. पार्वती ने कुछ डाउट है शायद. पवित्रा. अनम्यूट क्यों नहीं होता है? आप लोग अपने तरफ से अनम्यूट मत रखो. आप लोग सब म्यूट रखो. आई विल अनम्यूट यू. मुझे अनम्यूट करने में ही 10 मिनट चले जा रहे हैं. पवित्रा आई एम अनेबल टू अनम्यूट यू. आकाश प्रजापति बोलो. प्रजापति बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलो. प्रजापति. अमन. हाँ बोलो. मिस मैं क्या बोल रहा था हाँ, बोलो ना. यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस है,
तो यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस का अपन ने क्यों लगाया फॉर्मूला? कम इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, क्या लिखा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, एक्स इंटरेस्ट प्राइस चाहिए। हाँ हाँ, तो एक्स हाँ इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखा है, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखा है ना। हाँ हाँ मतलब मैं हाँ, क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। वेरी सिंपल। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस अगर दिया है, नथिंग टू बी डन, डायरेक्टली लेना है, नथिंग टू बी डन, वी कैन टेक डायरेक्टली, टेक डायरेक्टली, ठीक है, हम्म। समझा। पार्वती हाँ को कुछ पूछना है ना, आई एम म्यूटिंग यू, आपका डाउट क्लियर है। पार्वती मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ आपको, आई थिंक यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ। अंजलि कोई डाउट है क्या? हाँ अंजलि बोलो। आप लोगों को म्यूट करने में मेरा बहुत टाइम जाता है। चलो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये परचेज है, परचेज की एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नो मैम, नो डाउट मैम, मुझे न्यू स्क्रीन का कुछ नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, इज इट दैट माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू ऑल? मैम बहुत जन का लॉगिन नहीं हो रहा है बिकॉज अटेंडेंस कम है। ओके ओके ओके, आई विल चेक इनटू इट। पर आज का मैंने रिकॉर्डिंग किया, सो आई विल बी एबल टू शेयर विद एवरीवन, ओके, डोंट वरी। चलो नाउ वी आर मूविंग अ स्टेप, नेटवर्क स्लो हो गया होगा उसका मैम, ओके ठीक है, लेट अस मूव अहेड, लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दिस, हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा नहीं तो। नाउ टुडे आई हैव रिकॉर्डेड द कंप्लीट लेक्चर, सो डोंट वरी, आई थिंक वी विल बी एबल टू सेंड देम द रिकॉर्डिंग टुडे। हाँ दैट आई नो, साइन इन का आज बहुत इशू है, वो साइन इन नहीं अगर हम रखेंगे तो विल नॉट कम टू गेट योर, विल नॉट गेट योर अटेंडेंस, इसलिए साइन इन रखना है। ओके नाउ आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या है, यू ऑल नो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसमें दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंड स्टेप में है कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी मूव टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग? सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज सेल। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? कैन एनीवन गिव मी द एंट्री? रेज योर हैंड सो दैट आई विल कम टू नो व्हाट इज द एंट्री। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है। किस, पवित्रा, आपका तो पता नहीं क्यों अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। श्रुति ने आज सुबह से एक भी आंसर नहीं दिया। राहुल आर वाई कौन है पता नहीं, चलो राहुल को अनम्यूट करते हैं। वेयर इज राहुल? क्या हुआ, राहुल का हाथ नीचे चला गया अपने आप? अफरोज चलो आंसर, फिर श्रुति को नेक्स्ट चांस देंगे। अफरोज, कोमल आप मत बोलो, मैंने अफरोज को अनम्यूट किया है, आप म्यूट रहो। कोमल अफरोज बोलो चलो, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर सेल? डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ना, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जब आप बोलते हो तो ये एंट्री इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को साथ में एक और चीज की एंट्री करनी है, बैंक दैट इज अकाउंट एंट्री। डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इन्वेस्टमेंट टू टू इंटरेस्ट, टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैम वो सेल हो चुका है तो वो गया है। गया है तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। परचेज के टाइम पे हम नॉमिनल इंटरेस्ट पे करते हैं, सुनो सुनो सुनो,
परचेज जब हम करते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, हमको सेलर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, वी रिसीव इंटरेस्ट। इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो जब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट टू इन्वेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, आई विल नॉट बी एबल टू चेक दिस। आप लोगों ने लिखा है ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। अब जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होता है तो देयर इज वन मोर थिंग। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने एसवाई में एक एंट्री की थी, और एक एंट्री आती है, व्हाट इज दैट वन मोर एंट्री दैट यू गिव? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में और एक चीज और होती है, व्हाट दैट इज? प्रॉफिट और लॉस। याद है सब लोगों को? प्रॉफिट और लॉस अगर होगा तो क्या एंट्री होगी? whenever there is profit or loss, if there is profit, what is the entry? प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, और अगर लॉस है तो एंट्री क्या होगी? चलो कौन बता रहा है प्रॉफिट की एंट्री? राहुल। ये राहुल कौन है मुझे नहीं पता। हाँ राहुल बोलो। हेलो हाँ बोलो राहुल, एंट्री क्या होगी? मैम, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट रहेगा। हाँ, और कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? बराबर है, क्रेडिट होगा, बट कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? सेल्स में। नहीं बेटा, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? विच अकाउंट डू यू ट्रांसफर प्रॉफिट? कौन से अकाउंट में आप प्रॉफिट ट्रांसफर? बैंक अकाउंट मैम। ना रे बाबा ना, बैंक बैंक अकाउंट में तो अकाउंट। बैंक अकाउंट में तो पूरा सेल अमाउंट जाता है। बैंक अकाउंट में यू शो सेल प्राइस, प्रॉफिट सेल का एक पार्ट है। सो प्रॉफिट के लिए एंट्री, राहुल यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखते हैं, चलो और किसी ने हाथ उठाया है? आफरीन, कोमल, अफरोज, सृष्टि, कहाँ गए आप? चलो आई विल गिव द आंसर, बिकॉज आंसर इज इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आया किसी को? किसी को याद आ रहा है? ऐसा मैंने कभी कुछ पढ़ाया था। एंट्री इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर लॉस है, इफ देर इज लॉस, तो लॉस डेबिट होता है, और वो लॉस कहाँ डेबिट करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आई होप सो 2 एंट्रीज वी हैव डन फॉर सेल। आप लोगों को दोनों एंट्रीज क्लियर है? नाउ वी मूव अहेड स्टेप्स। जब आप सेल करते हो तो आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं? स्टेप्स फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हेनेवर देयर इज सेल, आपको 4 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको याद है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज face value into rate of interest into number of months divided by 12। फिर आप कैलकुलेट करते हो बी पॉइंट में, यू कैलकुलेट ए कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। वो भी आपको मालूम है कि कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस कब करना है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस तभी कैलकुलेट करना है जब हमारे पास कम इंटरेस्ट प्राइस हो। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया है तो कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली ले लेना है। देन सी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमको प्रॉफिट या लॉस भी जानना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये जो है दिस इज वेयर AS 13 अप्लाइज। डायरेक्टली हम कॉस्ट नहीं लेते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट, WAC। डायरेक्ट सपोज मैंने 500 डिबेंचर्स खरीदे थे, फिर 600 खरीदे, पहले 500 फिर 600, तो टोटल डिबेंचर्स मेरे पास कितने हुए? 1100। अभी उस 1100 में से मैंने 600 डिबेंचर्स सेल किए। क्या सेल किए? 600। फर्स्ट आई परचेस्ड, पहले मैंने परचेज किया
first purchase was 500 debentures. ठीक है. Second purchase was 500 debentures of 60,000. This is an arbitrary example. Second purchase 600 debentures of 75,000. ठीक है. अब आप लोगों को ये बताना है मुझे कि मैंने बेचे 600 डिबेंचर्स, सोल्ड कितना किया? आई हैव सोल्ड 600 डिबेंचर्स. तो कौन से डिबेंचर्स सेल किया? सोल्ड 600 डिबेंचर्स. फर्स्ट परचेज में से सेल किया या सेकंड परचेज में से सेल किया या दोनों में से सेल किया? किस में से सेल किया? फ्रॉम वेयर डिड आई सोल्ड दिस डिबेंचर्स? आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है. You have to write your answer in the chat box. Chalo, I'm waiting for you all to answer in the chat box. First 500, second 100, first में से 500, second में से 100. I'm getting this answer. राहुल और सिद्धेश ने मुझे ये आंसर किया है. सब लोगों का ऐसा ही है. ठीक है, मतलब अब मुझे 500 का कॉस्ट तो मालूम है लेकिन मुझे 100 का कॉस्ट नहीं मालूम है. तो आप ऐसे निकाल सकते हो 600 के लिए 75,000 है तो 100 के लिए कितना. तो you can calculate that way also. But AS13 says that के weighted average cost calculate करो. क्या calculate करो? weighted average cost. अभी weighted average cost जब calculate करने बोल रहे हैं तो मतलब क्या? मतलब ये होता है कि 1100 debentures का cost है 1,15,000. करेक्ट? नहीं सॉरी 1,35,000. तो जो 600 डिबेंचर्स सेल किए हैं उसका कॉस्ट कितना होगा? 600 डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना होगा? What will be the cost of this? Is called as weighted average cost. इसको क्या बोलते हैं? Weighted average cost. This is called as weighted. 1100 total debentures है. टोटल डिबेंचर्स का टोटल कॉस्ट है 1,35,000. तो आप 600 डिबेंचर्स सेल कर रहे हो तो 600 डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना होगा? इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू. यहाँ पे हमने नंबर्स में बात की है लेकिन हम प्रॉब्लम में क्या लेंगे? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड into total cost. हाँ, आंसर अगर आप लोगों ने निकाल दिया तो वेरी गुड. divide by face value of total debentures in hand. Divide, this is divide. Face value of total debentures in hand. मतलब face value of debenture sold 600 debentures means 60,000. face value will be 60,000. मैं यहाँ पे लिख के भी बताती हूँ कैसे होगा. equals to 60,000 into total cost is 1,35,000 divided by total cost is 135 divided by face value of total debentures. 1100 debentures की face value होगी 1,10,000. So your answer is कितना है आंसर? What is answer? किसी ने कैलकुलेट किया है? Anyone who has calculated? Answer is
73,636 73,636 समझ में आया? So what is weighted average cost? Weighted average cost is face value of debentures sold. 1,10,000 क्या है? देखो 1100 डिबेंचर्स अगर मैं बोलती हूँ 1100 डिबेंचर्स नंबर इज 1100, फेस वैल्यू कितनी होगी? अगर ये नंबर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसकी फेस वैल्यू मिलेगी 600 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो फेस वैल्यू कितनी हुई? 60,000। 1100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 1100 इंटू 100 कितना होता है? 1,10,000। समझ में आया आपको? राहुल एनी डाउट? राहुल एनी डाउट? इज इट क्लियर? निखिल क्लियर है? ओके समझ में आया? मतलब जब भी आपको नंबर्स दिया हो जैसे 1100 डिबेंचर्स, 600 डिबेंचर्स, 400 डिबेंचर्स, इसको इनटू 100 कर देंगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो स्टेप 3 इज क्लियर। नाउ वी मूव टू स्टेप 4, दैट इज द लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, calculation of profit is equal to, calculation of profit में calculation of profit में profit is equal to step 2 minus step 3। अभी स्टेप 2 क्या था? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सेल्स में एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज सेल्स प्राइस, दिस इज सेल्स प्राइस। आवाज कम करो। सेल्स प्राइस। So step 2 is sales price minus cost price। स्टेप 2 में आपने एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाला, सेल्स का एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज सेल्स प्राइस। स्टेप 2 में आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला, दैट इज कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। क्लियर है? सो जब हम परचेज करते हैं तो हमारा दो ही स्टेप पे पार्ट खत्म हो जाता है। एक स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, दूसरे स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। लेकिन जब आप सेल करते हो तो यू हैव टू डू 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, third step is calculation of weighted average cost, and fourth step is calculation of profit. Is it clear? Is it clear? I'm repeating. सेल में 4 स्टेप है। पहला स्टेप है इंटरेस्ट, सेकेंड स्टेप है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, थर्ड स्टेप है वेटेड एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट? वेटेड एवरेज कॉस्ट इज फेस वैल्यू of debentures sold into total cost divided by face value of total debentures in hand। आप लोग I hope so ये सब लिख रहे हो। हाँ, no one is that you are not writing it। Is it clear? So I hope so कि ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब लास्ट है, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। Now we move to the next। अब परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया, अब इंटरेस्ट रिसीव करना है। क्या करना है? इंटरेस्ट रिसीव। योर थर्ड, जो भी आपके पास इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए व्हाट विल बी द एंट्री? इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए व्हाट विल बी द एंट्री? चलो कौन बता रहा है? एनीवन? इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कोई और? आकाश और कोई? एनीवन एल्स? इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी? आई एम वेरी शॉक्ड कि आप लोगों को इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री नहीं आती है। इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री क्या होगी? बी लिटिल फास्टर। सेम पीपल आर रेजिंग हैंड, इसलिए मैं नहीं पूछ रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट?
क्या मिला आपको? टू इंटरेस्ट एंट्री इज वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय 12, ये तो याद है। अभी इसमें ना मेन पार्ट क्या आता है ना, जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो आपको फेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाते हैं। सपोज ये प्रीवियस एग्जाम्पल है हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। पहले 500 डिबेंचर्स परचेज किए, फिर 600 परचेज किए, उसके बाद हमने 600 सेल किया। अब 600 सेल करने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट आफ्टर सेलिंग 600 डिबेंचर्स, ओके। अगर ऐसा रहेगा तो कितने डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? देखो आपके पास था क्या, लेट अस सी। आपके पास था 1100 डिबेंचर्स, उसमें से आउट ऑफ विच you sold 600 डिबेंचर्स, ठीक है। 600 डिबेंचर्स सेल कर दिए, तो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन हाउ मेनी डिबेंचर्स? ऑन हाउ मेनी डिबेंचर्स बोलो, चैट बॉक्स में डालो। आपके पास 1100 डिबेंचर्स थे, 600 सेल हो गए, तो अभी इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 11 ओम आपको क्या हो गया है? 1100 थे, 600 से बेच दिए, तो बचे कितने? 500 बचे। तो हमको इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 500 डिबेंचर्स पे। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन हाउ मेनी डिबेंचर्स? ऑन 500 डिबेंचर्स, दैट इज द फेस वैल्यू इज 50,000। फेस वैल्यू कितना है? 50,000। सो फेस वैल्यू इज 50,000। हमको इंटरेस्ट कितने फेस वैल्यू पे मिलेगा? 50,000 पे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलो, now we move to the next part, that is, now this is very important part, accrued interest। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? accrued interest। accrued interest means accrued interest कब कैलकुलेट होता है वैसे? रेज योर हैंड जिसको इसका आंसर आता है। accrued interest हम कब कैलकुलेट करते हैं? accrued interest हम किसको कब कैलकुलेट करते हैं? रेज योर हैंड। व्हेन डू वी कैलकुलेट accrued interest? When do you calculate accrued interest? श्रुति, चलो आई लास्ट श्रुति। आज श्रुति से कुछ नहीं पूछा है। श्रुति, आई एम अनम्यूटिंग यू, आप म्यूट हो रहे हो। यस श्रुति बोलो। मैम जब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा तभी हाँ, कैलकुलेट करते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कब होता है? कब पता चलता है कि हमको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? कल जब मैंने इंटरेस्ट हमारा जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके बाद मिलने वाला होता है तभी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, कल अगर आप लोग को याद हो तो कल मैंने आप लोगों को एक ये बताया था कि अगर ईयर एंडिंग डेट और इंटरेस्ट ड्यू डेट में गैप हो, सेम नहीं हो, तो एक्रूड इंटरेस्ट आता है। व्हेन योर ईयर एंडिंग डेट इज 31 मार्च और इंटरेस्ट मिला है 31 दिसंबर तक की, मतलब फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट। सो एक्रूड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड व्हेन ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट ड्यू डेट डज नॉट मैचेस। एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एंट्री होगी, what will be the entry when you calculate accrued interest? Can anyone tell me?
एक्रूड इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी? कोमल इज सेइंग। यस कोमल बोलो, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बोलो। यस कोमल, कोमल ने रेज हैंड किया और यस कोमल। हाँ मैम हाँ, accrued interest account debit to interest. वेरी गुड। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव। Account हाँ बराबर है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। interest. एक एंट्री इज एक्रूड इंटरेस्ट मिलने वाला है, इट इज आर एसेट। इसके लिए एंट्री इज एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर है। अभी ये एंट्री आप लोग याद रखो, एंट्री याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि क्या होता है एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके, आप लोग लिख भी रहे हो ना? आई होप सो यू आर राइटिंग साइमल्टेनियसली। नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन, ये लास्ट है आज का पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ closing balance of investment, closing balance of investment, investment का closing balance हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी as per AS 13, as per AS 13, investments are valued at cost or market price whichever is less। पढ़ा है ये पहले कभी? कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less कभी पढ़ा है कहीं पे? किसी को वैल्यू किया है ये मेथड से? किया है क्या? ये रिमेम्बर हमने ऐसा पहले भी वैल्यू किया है। जब हम स्टॉक वैल्यू करते हैं तो हम स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं? इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less। इफ मार्केट प्राइस इज लेस, अगर मार्केट प्राइस लेस होता है, market price is less, then there is loss and it is transferred to profit and loss account। अगर आप देखते हो कि मार्केट प्राइस कम है, अभी यही हमारा एग्जाम्पल जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसी में एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि 500 डिबेंचर्स हमारे पास बैलेंस थे। 500 डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स का कॉस्ट है 60,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 62,000। whichever is less, क्या लेस है? क्या लेस है? what is less? cost is 60, market value is 62, तो क्या कम है? so जो कम, आंसर चैट बॉक्स पर डालो ना बच्चा लोग। 60,000 is less, cost is less, cost ही कम है, तो cost is less, तो हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे? 60,000। मतलब मेरे अकाउंट में बैलेंस आ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 और मार्केट वैल्यू से वो कम है, 60,000 ही है, तो 60,000 विल बी माय क्लोजिंग। ये जो कॉस्ट हो लेस है 60,000, दिस इज माय क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्या है मेरा? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी ये रिवर्स लेते हैं, कॉस्ट इज सेम, कॉस्ट इज 60,000, कॉस्ट कितना है? 60,000, लेकिन
मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू इज 59,000। तो क्या लेते थे? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी 59,000, करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री? 59,000 ऑलरेडी आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाला, whichever is less। अभी मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था उसका 60,000, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग इट एट 59,000, तो मुझे 1,000 का लॉस हो गया। मार्केट वैल्यू अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की कम हो गई तो मुझे लॉस हो गया, करेक्ट और नॉट? सो दिस लॉस ऑफ 1,000 का लॉस हुआ। 60,000 कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 59,000 है, तो 1,000 का मुझे लॉस हुआ है। लॉस ऑफ 1,000 इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ डेबिट होगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखो, अगर कॉस्ट कम है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने 60,000 में खरीदा, 60,000 ही है अभी भी कॉस्ट, मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है। तो कंजर्वेशन लॉ अपना कंजर्वेटिव पॉलिसी सेज दैट कि अगर कॉस्ट कम है तो यू हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई आपके इन्वेस्टमेंट की तो आपको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। और फिर आपको लॉस भी हुआ है, आपने 60,000 में खरीदा था और अभी मार्केट प्राइस से 59,000 है, तो आप 59,000 में अभी उसको क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 1,000 जो लॉस बचा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एंड ये लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit to investment। is that clear? अगर कॉस्ट कम आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर हमको लॉस हो ही नहीं रहा है। अगर कॉस्ट ही कम है तो देर इज नो लॉस, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो मैं जो 60,000 का कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट है उसको क्लोजिंग कितना दिखा रही हूँ? 59, तो मुझे 1,000 का लॉस है, और वो 1,000 का लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? समझ में आया? put yes on the chat box। this is the most tricky point of your इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। किसी को डाउट है? क्लियर है? तो नाउ वी मूव टू फाइनली द लास्ट पॉइंट। जब आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वी ऑल नो इंटरेस्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा, इंटरेस्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस को लास्ट में किधर ट्रांसफर करते हैं? इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड में जो भी नॉमिनल, जैसे सैलरी है, रेंट है, हम लास्ट में क्या करते हैं? ये जो भी नॉमिनल अकाउंट है इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली ईयर एंड पे, एट ईयर एंड आपको लास्ट में क्या करना है? इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लास्ट एंट्री आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, एंड एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इज एन इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लास्ट में क्या करना है? इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट इज इनकम, इनकम को ट्रांसफर करोगे इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट इज इनकम, तो इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट अकाउंट का जो भी बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा। इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। एम आई क्लियर? अब सिर्फ मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है, दैट इज हाउ डू वी प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट आई टेक टुमारो
और शुड आई टेक इट नाउ? खाली मेरे को अभी आप लोगों को बताना है कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाना है. शुड आई टेक इट नाउ और शुड आई टेक इट टुमारो? Now. Anjali says now. Okay. It will take 2 minutes only, not more than that. So now let us understand how do we prepare in. So I'm saving this. I'll open an Excel sheet. Share screen. Can you see my screen? Hello. Can you put it on the chat box? क्या आप लोग screen देख पा रहे हो क्या? ये Excel file दिख रहा है? Okay. Fine. Got it. So how do we prepare investment account? सबसे पहले we'll write down. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हम लोग कॉलम समझते हैं. सबसे पहले आता है डेट का कॉलम. डेट, पर्टिकुलर्स, देन फेस वैल्यू. एफ भी लिखा तो फेस वैल्यू. देन इंटरेस्ट. यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट सेपरेटली नहीं बनता है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ मर्ज होके बनता है. कॉस्ट. ठीक है. एक मिनट आई एम चेकिंग योर मैसेज. वेट. डेट, पर्टिकुलर्स, face value, interest and cost. So this is how we prepare. अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं. Not able to see or what? मैम जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है. मैं Excel sheet is not visible. Okay. I was wait. Got it. Ruxana Shah raised hand. Ruxana क्या हुआ? I hope so now it's visible. ठीक है. So now first thing, अब दिख रहा है. I hope so.
प्लीज लेट मी टाइप सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ. आप लोग बीच बीच में ही मुझे बोलते जाओगे. स्टॉप चैटिंग प्लीज. Yes, I know it's showing now. I can also understand. अभी ये देखो, ये आप लोगों का मैं फॉन्ट साइज विजिबल है क्या? दिस इज आवर कॉलम. हम लोग टेबल्स में गए, प्लॉट किया. ठीक है, दिस इज आवर. अभी सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर एक्स फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद लिखेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट. फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड. कौन सा ईयर एंडेड है? 31 मार्च 2020 सपोज, एक एग्जाम्पल. फिर उसके नीचे ठीक है, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू डेट. इंटरेस्ट ड्यू डेट्स. इंटरेस्ट ड्यू डेट्स क्या है? 30 जून 30 जून एंड 31 दिसंबर. ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी है. ओके, ये आपको याद रखना है. मतलब आपको क्या क्या लिखना है स्टार्ट में, किसके बुक में डाल रहे हो, कौन सा है, कौन से बॉन्ड्स, क्या नाम क्या है आपके इन्वेस्टमेंट का, ईयर एंडिंग क्या है, इंटरेस्ट ड्यू डेट क्या है. कॉलम्स क्या क्या बनते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. ये आप लोगों को, सब लोगों को साथ साथ में बनाते जाना है. डोंट वेट कि मैं बोलूंगी उसके बाद आप लोग बनाओगे, ऐसा कुछ मत करो, मेरे साथ बनाते जाओ. सबसे पहले अभी ईयर एंडिंग है 31 मार्च, मतलब ईयर बिगनिंग होगा 1 अप्रैल. सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस. क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस. आप उसमें फेस वैल्यू डालोगे. इंटरेस्ट कब आएगा? एक्रूड इंटरेस्ट जब ईयर एंडिंग डेट और इंटरेस्ट ड्यू डेट सेम नहीं है. तो अगर अलग अलग है तो ही आप लोग एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. एंड लास्ट में यू विल कैलकुलेट कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट दिया होगा इनफैक्ट. फिर ऑन एनी डेट there will be to purchase होगा. परचेज का फेस वैल्यू, परचेज के इंटरेस्ट और परचेज का कॉस्ट. ठीक है. सेल अगर है तो सेल विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. बाय सेल्स, फेस वैल्यू प्रॉब्लम में होगा. इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया होगा और कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया होगा. ये कॉस्ट का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. स्क्रीन नहीं दिखा मैम? अभी भी नहीं दिख रहा है मैम? आवाज नहीं आ रही है? आप इतना सब एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही है. कौन है ये? मैम योर वॉइस इज नॉट प्रॉपरली लो आ रही है. ओके ओके, आई एक्चुअली रिड्यूस माई वॉइस. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस, आई विल एक्सप्लेन. स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? योर स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन, माई स्क्रीन इज क्लियर. स्वधा, आई थिंक प्रॉब्लम इज विथ यू ओनली. स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है. स्वधा, यू हैव टू चेक प्रॉब्लम. एक मिनट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन के क्या क्या कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, विल डू इट दिस टुमारो. ये जो पार्ट है ना हम लोग कल करते हैं. लेट अस
मैं एक बार खाली आप लोगों के लिए लिख देती हूँ सो दैट कल है ना, ये खाली आप लोग फॉर्मेट याद रखो कि क्या क्या है। कल प्रॉब्लम वैसे भी हमको करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल बाय प्रॉफिट और लॉस, दिस इज लॉस, दिस इज फेस वैल्यू। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सिर्फ लॉस या प्रॉफिट ही रिकॉर्ड होता है और वो सीधा कॉस्ट कॉलम में जाता है। कहाँ जाता है? इट गोज डायरेक्टली टू कॉस्ट कॉलम। आई एम एक्सप्लेनिंग, लिसन। आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा। ओपनिंग बैलेंस में आया फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। इंटरेस्ट तभी आएगा, ये इंटरेस्ट तभी रिकॉर्ड होगा जब, ये इंटरेस्ट तभी रिकॉर्ड होगा जब एक्रूड इंटरेस्ट है। और एक्रूड इंटरेस्ट कब आता है? एक्रूड इंटरेस्ट तब आता है जब आपका ईयर एंडिंग डेट और when your year ending date this will come only when your year ending date and interest due date does not matches। यहाँ पे देखो मैच नहीं हो रहा है। year ending date is 31st March and interest due date is 31st December and 30th June। कोई भी एक डेट मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे accrued interest आएगा। फिर आपने परचेज किया, परचेज कम्स ऑन द डेबिट साइड एंड सेल्स कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। सेल हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा। अभी आप लोगों ने सारी एंट्रीज लिखी हैं, वो एंट्रीज को पढ़ो, आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लॉस है तो लॉस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव अगर हो रहा है तो बाय इंटरेस्ट, सॉरी बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव के केस में सिर्फ हम इंटरेस्ट रिसीव का अमाउंट लिखते हैं, नो फेस वैल्यू, नो कॉस्ट। और लास्ट में हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज करते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फेस वैल्यू कॉलम का बैलेंस निकालते हैं, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट। कॉस्ट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट करके, दिस इज अगेन बैलेंसिंग फिगर। और ये जो इंटरेस्ट का है ना, इंटरेस्ट यहाँ पे आता है एक्रूड इंटरेस्ट। क्या आता है? एक्रूड इंटरेस्ट। जैसे ओपनिंग बैलेंस में एक्रूड इंटरेस्ट आया है, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस में भी हमको क्या करना है? एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक्रूड इंटरेस्ट हमको मिलेगा नहीं कहीं पे, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फेस वैल्यू पे। ये फेस वैल्यू पे हमको एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस फेस वैल्यू। अब ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए, फेस वैल्यू और कॉस्ट का कॉलम क्लोज हो गया, हमने बैलेंस निकाल दिया। ये दोनों का क्लोज करके ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इंटरेस्ट का ये दोनों क्लोज किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, तो इसको क्लोज करने के लिए यू हैव टू क्लोज ऑपोजिट साइड, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या करना है आपको? क्रेडिट माइनस डेबिट यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे वो अमाउंट आएगा, दिस इज द अमाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये उल्टा क्लोज होता है, दिस इज क्लोज। ये अभी कैसे क्लोज किया मैंने? क्रेडिट माइनस डेबिट, दिस इज क्रेडिट माइनस डेबिट। इज दैट क्लियर? बाकी ये जो बैलेंस निकाला, ये कैसे निकाला? डेबिट माइनस
credit. This is also debit minus credit. समझ में आया आप लोगों को? So this is roughly your account. आप लोगों का अकाउंट जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा. So आप लोगों को ये समझना है कि डेबिट साइड में परचेज आता है, क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑन द क्रेडिट साइड. क्लोजिंग बैलेंस निकालते हुए फेस वैल्यू का बैलेंस कैसे आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट. कॉस्ट का बैलेंस कैसे आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट. इंटरेस्ट का बैलेंस कैसे आएगा? ऑपोजिट साइड में क्रेडिट माइनस डेबिट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर अकाउंट. ये आप लोगों को कॉपी भी करना है, ये अकाउंट बना लो. ओके. So I think I'm done with the basics of investment accounting. कल आप लोग सब लोगों के पास problem sheet होनी चाहिए. Tomorrow we are going to start with the problem. Time of the lecture I'll announce because tomorrow Savita madam is taking lecture. So tomorrow we'll see what to do. Okay. So see you all tomorrow. Take care. किसी को डाउट है ये अकाउंट बनाने में? मैम वन पिक विल सेंड इन ग्रुप दैट स्क्रीन. ओके. टुडे माय वॉइस आई विल इंक्रीज. टुमारो आई विल इंक्रीज. अभी तो लेक्चर खत्म हो गया ना, कल इंक्रीज करती हूँ. ओके. आई विल इंक्रीज माय वॉइस, डोंट वरी. आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. मैं इंक्रीज करती हूँ मेरा वॉइस. ठीक है. ठीक है. वॉइस टू साइन इन प्रॉब्लम ऑल्सो. हाँ, ये दो चीजें मैं देखती हूँ. एक तो मेरे आवाज का प्रॉब्लम और दूसरा साइन इन इश्यू. आई चेक विद इट. अगर हम लोग साइन इन नहीं रखते हैं ना तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. साइन इन रखना हमारे लिए कंपलसरी है, नहीं तो मुझे अटेंडेंस नहीं मिलेगा कि हु ऑल आर अटेंडिंग. एक मिनट रुको. आई विल सेंड दिस पिक. So thank you very much. You can sign out.